اور اس کو دن میں 3 بار پڑھ، اور اگر بہتر ہے جو کی روٹی پھیکی دال کھا، ترک حلالی ترک جمالی، ترک لذات ترک حیوانات، ترک شہوات اگر کر سکے تو اس عمل میں کمال ہے۔ اور کہا کہ ان کے سامنے اللہ نے پھر جو خزانے کھولے، اتنے کھولے، وہ کہتے تھے مولا بس بس بس، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے، یہ نعمتیں، یہ خزانے، یہ کائنات کے راز، یہ ساری نعمتوں کے جو سورۃ الرحمن میں موجود ہیں، ان کے خزانوں کے منہ کھول دو۔ وہ بھی کھاتا ہے جو نہیں مانتا، صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی اس کے عذاب سے ٹلا ہوا ہے جو نہیں مانتا، اور صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی اس عذاب سے ٹلا ہوا ہے جو نہیں مانتا اور جو مانتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو ترتیب بنے گی، وہ ہے صفت رحیم کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں، دوست علیحدہ ہو جائیں۔ دنیا میں مجرموں کو علیحدہ نہیں کیا، یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے۔ سب کو کھلایا، سب کو پلایا، سب کو بٹھایا، اور سب کی شکلیں مسخ نہیں کی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کفن چور آیا، پوچھا کتنے لوگوں کے کفن چرائے؟ کہا اتنے لوگوں کے۔ کہا لوگوں کے چہروں کا کیا حال ہے؟ کہا میں نے اکثر کے چہروں کو بدلا ہوا پایا، کوئی خنزیر، کوئی سور، کوئی بندر، کوئی کتا۔ اللہ نے صفت رحمان کی وجہ سے، اللہ نے صفت رحمان کی وجہ سے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ ساری عمر کپڑا اوڑھ کے نماز جمعہ میں آتے تھے، آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے کہ میں نے صفت رحمان کی وجہ سے اللہ کے پردے میں رہا ہوں، جبکہ میری شکل بدل گئی ہے۔ اور کیوں؟ فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ جو بندہ نماز میں پہل کرے گا، نماز میں پہل کرے گا، اس کی شکل گدھے کی طرح ہو جائے گی۔ میں نے کہا پہل کر کے تو دیکھوں، کیونکہ میں راز اور معرفت اور رب کے جانتا تھا، اس لیے میری دنیا میں ویسی شکل ہو گئی۔ اللہ نے کہا میں دنیا میں ایسی شکل بنا دوں گا۔ یہ میری صفت رحمان ہے کہ دنیا میں پردے دوں گا، شکلوں میں بھی، اس کے دلوں کی سیاہیوں میں بھی، اس کی ذلت اور رسوائیوں میں بھی، اس کی رات کی تنہائیوں میں بھی، اس کی پوشیدہ زندگی کی ذلتوں اور علتوں اور غلاظتوں اور خباثتوں میں بھی یہ صفت رحمان ہے۔ اور رحمان اس سے شروع ہوئی ہے، اس لیے جو بندہ نماز عصر کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھتا ہے، میرے پاس نتائج اس کے بہت زیادہ ہیں، اور 2 نتیجے ایسے ہیں جو بہت زیادہ ملے ہیں۔ جو سانس روک کے 11 بار سورت صرف یا رحمان پڑھے گا، اللہ بیٹے دیں گے، بے اولادی ختم ہو جاتی ہے، بے اولادی ختم ہوتی ہے، اللہ بیٹے دیتے ہیں۔ اور دوسرا جادو کا توڑ اس میں زبردست ہے، جادو کا توڑ، جادو کا توڑ بہت ہے اس میں، جادو کا توڑ بہت ہے۔ انہوں نے میرا حل سوچا، جادو کا توڑ اس میں زبردست ہے۔ کس میں؟ کس میں؟ یا رحمان میں۔ اور جب بندہ سورۃ الرحمن پڑھتا ہے، اور سب سے پہلے الرحمن علم القرآن، رحمان اور جو قرآن، رحمان اور قرآن، قرآن رحمان کا ہے، رحمان قرآن کے لیے ہے اور قرآن میں ہے، تو اللہ کی جو بھی نعمتیں، عطائیں، شفقتیں، رحمتیں، وسعتیں، برکتیں، خیریں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، اس کے فرمان میں ہیں، اس کی رحمت کی جھلک میں ہیں، اور اس کی کائنات کے مختلف پرتوں اور مختلف نعمتوں میں ہیں۔ یہ وہ نعمتیں جو اس کے علم میں، جو لوح محفوظ میں ہیں، وہ نعمتیں وہ ساری کی ساری جمع ہو کے اسی وقت جمع ہو کے آ جاتی ہیں جب بندہ صرف پڑھتا ہے الرحمن علم القرآن، اور وہ بن جاتی ہیں خلق الانسان
हमने इंसान को बनाया, अल्लाह कहता है ये नेमतें सारी मैं तुझे अता करता हूं, इसलिए इस सूरत को पढ़ने वाला बे औलाद नहीं रहता। गैर शादीशुदा हो, मैंने मक्का मुकरमा में एक दुर्वेश से सुना, मैंने कितनी बार लोगों को सूरत रहमान में 2 चीजों में बताया है, एक बे औलादी में, एक रिश्ते न होते हैं उसके लिए सुबह शाम एक बार पढ़ने, सुबह दोपहर शाम एक बार पढ़ने, वरना रोजाना एक बार पढ़ने सूरत रहमान। आजकल सूरत रहमान सुनने एक थेरापी, एक तरीका, एक जरिया इलाज है कि इसको सिर्फ सुने, इसको सुने और वाकईतन हकीकत है, इसको सुनना शिफा, इसको देखना शिफा, कुरान को सुनना शिफा, कुरान को देखना शिफा, कुरान को बोलना शिफा, कुरान को सोचना शिफा, कुरान के लहजे में पढ़ना, कुरान को हकीकत में पढ़ना, कुरान को अटक के पढ़ना, कुरान को तकलीफ से पढ़ना और सुख से पढ़ना और जिस अंदाज में पढ़ना, यह शिफा है। और सूरत रहमान इसलिए शिफा है, क़यामत के दिन सारे के सारे पढ़ेंगे और दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर पढ़ेंगे, फिर मेरा अल्लाह कहेगा आओ मैं अपना कुरान तो मैं खुद सुनाता हूं, उसका इंतखाब मेरा रब सूरत रहमान का करेगा। अल्लाह मेरे ने पूरे कुरान को, मेरे रब ने पूरे कुरान को भेजा है, लेकिन अपने लिए जो पढ़ने का इंतखाब किया है मेरे अल्लाह ने, वो सूरत रहमान का इंतखाब किया है। और सूरत रहमान में 24 नेमतों का तज़किरा है। आपने अचानक पर्चियां दी सूरत रहमान पे, तो अल्लाह ने दिल में डाला 24 नेमतों का तज़किरा है और कुदरत का निजाम, वो 24 नेमतें सारी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कई समंदरों की तहों में, कई पहाड़ों की तहों में, कोई नेमतें, कोई चीजें, कोई फल, आप सारी की सारी चीजें देखेंगे, वो सारी चीजें सूरत रहमान की मौजूद हैं। किसमें? सूरत रहमान सारी की सारी नेमतें मौजूद हैं, सूरत रहमान की सारी नेमतें मौजूद हैं और पाकिस्तान में, और ये सारी नेमतें दरअसल अल्लाह ने इजहार नेमत किया है। ये सारी नेमत दरअसल अल्लाह ने इजहार नेमत किया है, इजहार नेमत किया है। देखो मेरे बंदो, थोड़ी सी नेमतें मैंने गिनवाई हैं, दिखानी इसलिए है कि तुम देख के मानते हो, इसलिए कि सुन के मानते हो, इसलिए हकीकतों को मानते हो, इसलिए सूरत रहमान में नेमतें मैंने दिखा दी हैं, ये चंद दिखाई हैं। मेरे पास नेमतों के खजाने हैं, रिज़्क़ के खजाने हैं, बरकत के खजाने, मेवों के, पत्थरों के, हीरे जवाहरात के, लाल जबरजद और जमरत के, ये चीजों के खजाने हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, मुझे जो है वहां अफगानिस्तान में अहमद शाह मसूद कमांडर ने एक अंगूठी दी। कहने लगा, मैंने कहा अंगूठी है, मुझे पता नहीं था वो क्या था। कहा कि मेरी शादी हुई, मुझे एहसास हुआ गरीब हूं, अंगूठी बेचूंगा, क्या पता कुछ बिक जाए। मैं लेकर गया एक जौहरी के पास, उसने देखा बहुत कीमती पत्थर है, आपको कहां से मिला है? कहने लगा बस मेरे किसी दोस्त ने मुझे दिया था। गालिबन मुझे 19 या 22 लाख बताए उस अंगूठी के पत्थर के। कराची में मुझे कुवैत का सफीर कहने लगे, जी वो उसको अमलियात और रूहानियत का बहुत शौक है। एक बड़ा आदमी कहने लगा वो आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा वो अरब है? हाँ अरब है। मैं कहा मैं खुद मिलूंगा। इसलिए नहीं वो सफीर है, अरब है, अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी अजमत है। क्यों? मेरे हबीब की जुबान अरबी, मेरे अल्लाह की कलाम अरबी कुरान, जन्नत की जुबान अरबी और कब्र की जुबान अरबी और अल्लाह की जुबान अरबी और फरिश्तों की जुबान अरब। मैं उसके पास गया, कराची डिफेंस में वो रहता था। आते हुए उसने मुझे एक अंगूठी दी, पत्थर दिया, आपके लिए अंगूठी, आप पहनिएगा। मैंने हदिया कबूल किया।
मैंने एक दो बंदों को दिखाया कि अल्लाह को बहुत बहुत कीमती पत्थर है, अल्लाह के यहाँ ये पत्थर है, मेरे रब के पास है पत्थरों के खजाने हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्द, जिसने खजाने नेमतों के लेने हैं, जिस सूरत में सबसे ज्यादा खजानों का तज़किरा है वो सूरत रहमान है। और मालूम हुआ कि अल्लाह इस खजानों के तज़किरों के साथ बंदों को यह खजाने देना चाहता है, बंदों को यह खजाने मेरा रब देना चाहता है। और जो सूरत रहमान को पढ़ेगा उसको अल्लाह खजाने अता फरमाएगा और उसको अल्लाह खजाने देगा। सूरत रहमान लोग बीमारियों के लिए सुनते हैं, सूरत रहमान पढ़ के फूंकते हैं, फिर इसका पानी टेस्ट करवाते हैं लेबोरेटरी में, उसके अंदर हैरत अंगेज सेहतमंद अज्जा और तवानाइयां होती हैं। एक बंदे ने हमारे इस तस्बीह खाने के दम वाले पानी को टेस्ट पे ले गया, कहने लगा मेरी पूरी लेबोरेटरी हैरान है, ये दम वाला पानी कोई मुनफरिद कायनात का पानी है, जो दुनिया के सबसे आला तरीन पानी है, अज्जा पाए जाते हैं, अज्जा पाए जाते हैं। ये पानी उससे भी कहीं आखिरी दर्जे का है कि इसमें ऐसे सेहतमंद अज्जा हैं। सूरत रहमान, सूरत रहमान आखिर अल्लाह ही क्यों पढ़ेगा, मेरे रब का इंतखाब ही क्यों है सूरत रहमान, और मेरे रब का सच्चा इंतखाब सूरत रहमान है। फिर सूरत रहमान की हर फबी अयाला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पे एक गिरह दो, 7 रंग का नीला धागा लो, कच्चा नीला मोटा धागा लो, बदन के कद के मुताबिक उसकी 7 तहें बनाओ, 7 दफा उसको नापो, उसके 7 धागे हों, हर धागे पे सूरत रहमान जब आए उस पे फूंक मार के गिरा दो। सूरत रहमान में जब फबी आयाला है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आए तो उस पे गिरा दो। अब ये हर गिरह पे जब भी आए फिर गिरा दो, क्या आए, फबी आयाला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसकी गिरा दे हत्ता के धागा पूरा हो जाए, यानी सारी सूरत पूरी हो जाए, उस पे कितनी गिरह आ जाए। आप कोई बता सकता है कि सूरत रहमान में फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी बार है? एक बंदा कहते 31 बार, और एक बंदा कहता है 30 बार है? सही सही बताएं, देख के बताएं। अच्छा, अब उस पे ये धागा गले में डाल गए। जिस बीमारी की नियत करके पढ़ेंगे, जिस वबा की नियत करके पढ़ेंगे, जिस बला की नियत करके करेंगे, और जिस मुसीबत और जिस नाकामी की नियत करके करेंगे, ये धागा हैरत अंगेज नताइज को ले आएगा। हमारे यहाँ कारी साहब थे, वो एक धागा पढ़ के देते थे, आपने सूरत रहमान कही है तो कहीं भी सुबह है, आपके आराम का वक्त होता है। मुझे पता चला कि एक इजाफा और भी है, रात को सोना 1, फजर के बाद सोना 2, जोर के बाद सोना 3, असर के बाद कमर सीधी करना, इफ्तार करके भी सोते हैं, वो भी कमर सीधी करते हैं चूंकि जिस्म जरा निढाल हो जाए। 5 हो गए, हाँ माशाअल्लाह। 31 दफा सूरत रहमान में फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तज़किरा आया है। और ये 31 क्यों है? मैं उस दिन कब्र पे खड़ा था रात को, अंसारी साहब की कब्र का नंबर आया 31, 131 था, 231 था, 131 कब्रों के नंबर होते हैं वहां। सोचने लगा तो कहीं दूर चला गया,
7 वाली कब्र थी, एक 18 साल के जवान की। कब्र खोदने वाले ने बताया, मेरे साथी जिन्होंने खड़े होकर कब्र खुदवाई, कहने लगा ये कल जवान 18 साल का फौत हुआ है, माँ बाप ने उसको मोबाइल से रोका है और उसने खुदकुशी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, मेरे साथ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला का बही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह हू। अब इस धागे को गले में डाल और इस धागे की तासीर देख और इसका करम सूरत रहमान का और अल्लाह की नेमतों का फजल देख और अताओं और के करिश्मे देख। मैंने एक साहब को जिंदगी में सूरत रहमान का चिल्ला करवाया था। एक साहब को जिंदगी में सूरत रहमान का चिल्ला कराया था। सुबह तो छोटे छोटे मौजू दिया करें, ये तो बहुत बड़ी सूरत। इसका बड़ा होने का ताल्लुक इसलिए भी है कुरान में है और इसलिए भी है कि रब ने पढ़ा है, आखिर अल्लाह ने खुद पढ़ा। शायर है ना, उसे कहा जाए गजल तो अपनी वो गजल, वो नज़म, वो शायरी सुनाएगा जो सब टॉप पे होगी। ये शायर का मिजाज है। मेरा अल्लाह अजमतों का, कमाल का बादशाह, तो वो खुद कैसे सुनाएगा और वो होगी क्या जिसको मेरे रब ने सुनाया है? बोले अल्लाह। मैंने एक साहब को इसका चिल्ला करवाया था, जिंदगी में 1-2 बंदों को कराया, बस इसका चिल्ला करवाया था सूरत रहमान। जब भी पहुंचे सूरत रहमान के फबी अय्यालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पे, तो 40 बार आयत करीमा पढ़े, रोक के और ठहर ठहर के। बड़ा वक्त लगता है इसमें, रोक के और ठहर ठहर के, रोक के और ठहर ठहर के। और एक बार सुबह पढ़े, एक बार दोपहर पढ़े और एक बार शाम पढ़े। और इसको मैंने 70 दिन करवाया था, बहुत यकसुई से और बहुत तवज्जो से 70 दिन करवाया था। आप नहीं सोच सकते इसकी तासीर क्या मिलती। मैंने इसमें कहा था कि इस पे जितनी नेमतें हैं, या अल्लाह मुझे उन नेमतों की तस्खीर दे, नेमतों की तस्खीर। ये शायद आप पहली दफा सुनेंगे कि नेमतों की तस्खीर क्या होती है। अल्लाह जो ने सूरत रहमान में जितनी नेमतें दी हैं, उन नेमतों की मुझे तस्खीर दे। और तस्खीर क्या है? वो सारी के सारी नेमतें अपने खजाने गैब से मेरे सामने ठेर कर दे। आपने एक काम करो, सूरत रहमान की नेमतों को देखो, जो अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपनी नेमतें गिनवाई हैं बंदों को, उनको देखो। फिर मैं एक एक नेमत को करूं बयान, और उसका अंदाज आप देखें, आपकी अकल दंग रहे। सूरत रहमान एक दफा पढ़े, यहां तक समझ आ गई। और हर सूरत रहमान के फबिअय्यालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पे क्या पढ़ना है? आयत करीमा कितनी बार? कितने बार? 40 बार। याद रखिएगा, मैं पूछूंगा। और एक दफा सुबह, एक दफा जोहर के फजर के बाद, एक दफा जोहर के बाद और एक दफा मगरिब के बाद, हमेशा नमाज के बाद। और 70 दिन पढ़ना है। अगर कोई इसका चिल्ला करना चाहे, मेरी तरफ से इजाजत आम है, आपको इजाजत दे रहा हूं। अजब चीज है, नेमतों की मौला मुझे तस्खीर दे। नौमाए दुनिया व नौमाए आखिरा
नेमतों की मौला मुझे तस्वीर दे, नेमतों की तस्वीर दे कि तेरे खजाने में कितनी नेमतें हैं, मुझे अता फरमा, मेरी नस्लों को अता फरमा, मुझे अता फरमा, मेरी नस्लों को अता फरमा। मुझे मक्का मुकरमा में एक बड़े बुजुर्ग ने बताया कि अब्दुल्ला इब्ने सुबैयल हरम के इमाम, काबा बहुत बड़े इमाम थे, सुबैयल इब्ने सुबैयल, और मैं उनके जो दादा थे वो खिलाफत उस्मानिया में एक तुर्की बुजुर्ग आए थे, तुर्की बुजुर्ग, वो आके मदीना में मुकीम हुए थे मरने के लिए कि बकी की मिट्टी पे चला जाए, यानी जन्नतुल बकी की मिट्टी नसीब हो जाए बतौर कब्र, ताकि उन्होंने जिंदगी गुजारी। उनके पास ये अमल था। इब्ने सुबैयल के दादा ने उनसे ये अमल लिया, उनकी खिदमत की बहुत अरसा। उन्होंने खिदमत के सिले में गुर्बत थी और आखिरी गुर्बत थी। मदीना मुनव्वरा मक्का में गुर्बत थी। आपको इल्म होगा सऊदी अरब में अब भी नवाही इलाकों में बहुत गुर्बत है, और देहातों में जो सऊदी अरब हैं, देहातों में उनकी जिंदगी बददुआना आज भी सहाबा की झलक उनमें मौजूद है, सहाबा की झलक उनमें मौजूद है। आज सिफात मौजूद है। जहां दौलत नहीं पहुंची, जहां बिजली नहीं पहुंची, जहां सड़क नहीं पहुंची, जहां जिंदगी की रेल पेल नहीं पहुंची, उनमें आज भी अरब की सिफात हैरत अंगेज मौजूद है, हैरत अंगेज मौजूद। तो इब्ने सुबैयल के दादा ने, मुझे एक बुजुर्ग ने बताया, मक्का मुकरमा में दो चीजें बताई। कहने लगे एक सेह पत्ती बूटी है, सेह पत्ती 2.5 पत्ती बूटी है, 2 पत्ते जो उसके होते हैं वो बड़े होते हैं, एक छोटा होता है, और वो अरफात के मैदान में खास मौसम में निकलती है। 2.5 पत्ती, अरब में उसका कोई और नाम है। कहा कि अरब उसकी बड़ी तलाश करते हैं, जो मुतलाशी होते हैं, और वो उसको ले आते हैं, फिर 80 या 90 साल के बूढ़े को देते हैं, वो जवान हो जाते हैं। अरफात के मैदान में एक बूटी होती है। एक तो ये बात बताई थी, और दूसरी बात बताई कि कहने लगे ये मुझे अब्दुल्ला इब्ने सुबैयल ने खुद बताई, मेरा उनसे ताल्लुक था कि मेरे दादा ने खिलाफत उस्मानिया में एक तुर्क बुजुर्ग थे, वो हिजरत करके आए, मदीना मुनव्वरा में रहे, साहिब हैसियत थे, मालदार थे, लोगों की मदद करते थे। मेरे दादा गरीब, उनकी खिदमत की, बहुत खिदमत की, और मेरे दादा को उन्होंने ये अमल दिया कि सूरत रहमान पर हर फब अय्याला पे 40 बार आयत करीमा पढ़, उनके खजानों के मुंह खोल। क्या बताऊं आपको कि सूरत रहमान क्या है, और मैं पहुंच ना सका जो ये है, कोई पहुंच ना सका जो ये है सूरत रहमान। अगली बात बताओ, जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सुना है कि उनकी 40 रात 40 साल ऐसे गुजरे हैं कि सारी रात इबादत, दिन का रोजा किताबों में पढ़ा है, उनको जो अमल तकवीयत देता है वो यही सूरत रहमान का अमल है, वो यही सूरत रहमान का अमल है। वो तकवीयत देता है और उन्हें कुव्वतें देता है। सारी रात बंदा इबादत करे और दिन को रोजा रखे, तीसरे दिन पता चल जाता है, तीसरे दिन, सिर्फ तीसरे दिन एक कोई रूहानी ताकत हो, कोई रूहानी कुव्वत हो, कोई रूहानी अंदर एनर्जी हो, वो ये सूरत रहमान का अमल है।
وہ یہ سورۃ رحمان کا عمل ہے. سورۃ رحمان اور سورۃ رحمان کا جو اخیر ہے نا، آخری آیت، وہ پڑھیں. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. اس کا پہلا لفظ اسم اعظم، اس کا آخری لفظ اسم اعظم، اس کی پہلی آیت اسم اعظم. الرحمن پوری آیت ہے اسم اعظم، اس کی آخری آیت اسم اعظم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام برحمتک نستغیث.